Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. I am Professor Radharaman Singh. In the last lecture, we have seen some problems related to the differential equations, which is categorized as linear differential equation. Clear? And in linear differential equations, 2 or 3 points are very important. First of all, you have to recognize the differential equation, which is linear differential equation. This is the first point. And then you have to decide the integrating factor of that differential equations, and which is equal to e to the power integration of p dx. Okay? And I have already told you that in integrating factor there is no constant of integration. Even there is a indefinite integrations, but there is no constant of integration written on that. Clear? And the last point of the linear differential equation is the solution of the differential equations. So you must have what is the solution of the linear differential equation, which is equal to what? Integrating factor into y is equal to integration of q into integrating factor with respect to x plus constant term c. Here the integration, generally this indefinite integration on the right hand side of the solutions is evaluated by using by part. So we have seen 2 or 3 questions in the last lecture, and due to some problems, when we discuss second or fourth problem, perhaps second or third problem, the video is discontinued. So I am continuing from this part. So you can see, this is the question, linear differential equation. Solve. ये क्वेश्चन दिया हुआ था dy by dx plus y by x is equal to log x. ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है और देखने से ही लग रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं किससे, तो dy by dx plus ty is equal to q. तो p की जगह में हो गया 1 by x, q की जगह में आप देख सकते हो log x. ठीक है, सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर i p dx, 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, और ln x का मतलब e टू दी पावर ln x x हो जाता है. यहाँ पर मॉड देने की जरूरत नहीं है. मैंने कल भी कहा था आपको कि जब आप यहाँ पर वर्कआउट करेंगे तो मॉड देने की जरूरत नहीं है. मॉड तब देना है जब कुछ ना कुछ इनिशियल डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है. ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IVP. क्लियर? बट दिस इज नॉट द IVP, सो वी कांट write ln mod x, we simply write ln x. So it becomes, by using the properties of logarithm, this becomes e to the power ln x is equal to x. So hence the general solution of this solution is y into integrating factor x is equal to integration x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये q की जगह में कितना हो गया, तो log x और dx. अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं. ठीक है, तो बाई पार्ट यूज कर दीजिए. तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा log x, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, एंड होल का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट टर्म c. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, दैट्स व्हाई इट बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 इनटू log x, माइनस यहाँ आप देख सकते हो log x का हो जाएगा 1 by x और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2. अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके बचता है x by 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म से. इसका फिर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ऑलरेडी हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 माइनस लगा हुआ है, और एज इट इज. तो ये जो आपको दिख रहा है yx इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर बाय 2 इनटू log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट टर्म से. दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल, एंड दिस प्रॉब्लम इज this is the solution of the problem which is given in the last lecture, but due to some technical fault, the problem from here यहाँ तक ही हम लोग क्या कर पाए थे, उसका डिस्कशन कर पाए थे. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट मैं आपको दिखा दिया. अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने इसी टॉपिक्स का, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेके आ रहा हूँ, और उसको मैं डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेकिन ये देखने से नहीं लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है.
इसलिए सबसे पहले हम कभी नहीं लिखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन अगर हम लोग को करना हो लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक काम कीजिए, इसको पलट दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dy इज इक्वल टू 2y log y प्लस y माइनस x अपॉन y। एक ही बात है, इसको आप क्या करो, डिवाइड करो, तो हो जाएगा 2 log y प्लस 1 माइनस x बटा। ये जो माइनस x बटा y है इसको उठा के अगर लिखेंगे लेफ्ट साइड तो बोलो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा dx बटा dy। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस x इंटू 1 बाई वाई एक साथ इज इक्वल टू 2 log y प्लस 1। ठीक है, 2 log y प्लस 1। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके टर्म में तो इन टर्म्स ऑफ x, ये आपका पलट से पहले हम लोग जो दो क्वेश्चंस किए थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन था लेकिन इन टर्म्स ऑफ y था, बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y उसका पावर 1 और x का पावर 1 सेम है, और ये उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयरफॉर सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ t की जगह में कितना हो गया 1 बाई वाई और ये हो गया dy। ठीक है, इस केस में सारा y का रिस्पेक्ट में है, तो e टू दी पावर ln y मतलब सिंपली y हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज कितना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू x ये x के टर्म में है तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो 2 log y प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y, और यहाँ पे हो जाएगा dy। ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या करो आप इंटीग्रेट करके 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे हो जाएगा y इंटू लॉग y। ठीक है, और प्लस dy ये एक साथ और y करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ आपका बाई पार्ट लग रहा है, बाई पार्ट लगा रहा है तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2। ठीक है, i गेट लॉगरिथम पहले और ये बाद में, तो यहाँ से हो जाएगा log y रहेगा और y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस अब log y का 1 बाई वाई, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा y स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा पहले हो जाएगा y, हम एक बार में लिख देते हैं, आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे log y का हो जाएगा 1 बाई वाई और y का y स्क्वायर बाई 2, तो अल्टीमेटली y स्क्वायर बाई 2 तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई है और प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म, ये आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आंसर हो गया मतलब फाइनली वो हो जाएगा हेंस कितना हो जाएगा xy इज इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर log y माइनस y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ये और ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो जाएगा y स्क्वायर log y प्लस कांस्टेंट टर्म c xy। यही जो है दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा y log y प्लस ना गया। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा y के रिस्पेक्ट में होगा, वो डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, जैसा कि ये आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, मेथड्स आपका सारा वही लगेगा जो आपने पहले देखा है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि जो चीज आप x के रिस्पेक्ट में करते थे वो आप y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रॉब्लम। इसको आप एक नजर देखिए, फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ।
ये आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हो उस समय तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्व करना है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर 4x where mod of x less than equal to पाई बाई 4 एंड y पाई बाई 6 पर जो वैल्यू है वो आपका कितना है, तो 3√3/8 है, ठीक है। ये जो डाटा है इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, और ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कोई डाटा प्रोवाइड किया हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस और यहाँ लिखेंगे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रीरिटन एज, रीरिटन एज, फिर से लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा 10(2x) अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये आपको दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, तो इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, क्लियर। तो बताइए वह पी कितना है, -10(2x) अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और Q कितना है, Q है आपका cos स्क्वायर एक्स, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पावर ये 10(2x) लिख दो और ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 10(2x) को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये ऊपर चल जाएगा sec स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx, इतना आप लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए 2 10x अपॉन रुक जाओ, ये माइनस हो जाता है, 10(2x) का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ लेट करें 10x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स t टू द पावर माइनस 2t अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर और dt। हमको पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर वाला आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर ln mod 1 माइनस t स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए अब ये जो है सीधा सीधी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का mod लॉगरिथम का प्रॉपर्टी से, और 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब सवाल ये है कि अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि हम लोग ln 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि तब नहीं लिखते हैं जब कोई डाटा प्रोवाइड किया हुआ नहीं रहे, तो आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ mod लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो आपका -π/4 और +π/4 के बीच में है, जहां पर 10 का वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो 1 माइनस 1 से छोटा जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ से मॉड हम आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मॉड हटाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लिखेंगे हैंस इट्स जनरल सॉल्यूशन,
क्लियर। जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q मतलब cos स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू q, q मतलब cos स्क्वायर एक्स ये dx प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर। नीचे आप देख रहे हैं, मैं देख रहे हैं तो मैं कैमरा को नीचे फेस कर रहा था। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस ये होता है sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ dx इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। अब ये तुम्हारा cos 2x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस कांस्टेंट टर्म c, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है sin 2x है, अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं hence y into 1 minus tan square x is equal to sin 2x by 2 plus constant term c. This is complete integral. So this is the final answer you can see. तो कितना आसान है, बस आपको मेथड्स फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। क्लियर। इसको आप देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। ये आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। सॉल्यूशन जो है ऊपर लिखा गया है हैंस करके। हेलो फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई इनिशियल डाटा आपको प्रोवाइड कर दे तो वो जो है आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का डिमांड कर रहा है, तो आप अगर यहाँ तक आंसर छोड़ोगे तो ये आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है, मतलब वो पर्टिकुलर सी पता करना है, ठीक है, जिसके लिए वो डाटा दिया हुआ है। तो डाटा क्या था, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर y का वैल्यू 3√3/8। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में वो डाटा पुट कर देंगे। तो जहां y है वहां पे 3√3/8 और जहां x है वहां पे पाई बाई 6 डाल दीजिए। जैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं तो c का वैल्यू जो आता है 0 आ जाता है। जब c का वैल्यू 0 आ जाए तो c की जगह में इक्वेशन 1 में ही c की जगह में 0 डाल दीजिए। जो बचेगा आपको फाइनली वही आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू sin 2x अपॉन 2 into 1 minus tan square x, दिस इज द particular solution and this is the final solution of this given differential equations। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ न कुछ डाटा आपको दिया हुआ है। अगर कुछ डाटा प्रोवाइड है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का डिमांड कर रहा है। तो आप अगर सिर्फ जनरल तक निकाल के छोड़ दोगे तो वो आपका इनसफिशिएंट आंसर हो जाएगा, और सफिशिएंट आंसर तब तक ना होगा जब तक कि वो आप पर्टिकुलर आंसर उसको आप प्रोवाइड नहीं कर देते हैं। क्लियर। चलिए आइए एक नया क्वेश्चन के साथ, ठीक है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो और देखने से ही लग रहा है कि ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, तो dy बाई dx प्लस y इंटू फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू 5x इंटू 5 डैश एक्स, ये है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो dy बाई dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q। तो वेयर जहां p इज इक्वल टू 5 डैश एक्स हो गया और q जो है वो 5x इंटू 5 डैश एक्स। क्लियर। चलिए, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5 डैश एक्स dx। तो
सीधा सीधी बात है कि e टू दी पावर 5x है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा d 5x by dx, dx कैंसिल, तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। एज इट्स जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा? तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू दी पावर 5x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5x इंटू क्यू मतलब 5x इंटू 5-x dx, ठीक है। चलिए अब यहाँ प्लस कांस्टेंट टर्म्स, आपको पता है 5x को t मानो, तो ले 5x को क्या मानो? t मानो। जैसे कि डिफरेंशिएट करोगे तो 5-x dx जो है वो तुम्हारा dt हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो e टू दी पावर t इंटू टी इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि 5x को t मान ली और e टू दी पावर 5x मतलब e टू दी पावर t इंटू टी, अब 5-x dx की जगह पे t प्लस कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई पार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो दिस इज इक्वल टू t e टू दी पावर t इंटीग्रेशन है तो t इंटू e टू दी पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t ये dt प्लस कांस्टेंट टर्म c, तो हो जाएगा t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस कांस्टेंट टर्म c, हो जाएगा e टू पावर t, यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c, हो जाएगा t की जगह 5 e टू दी पावर 5x इंटू 5x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? therefore y इज इक्वल टू 5x माइनस 1 प्लस c इंटू e टू दी पावर माइनस 5x, दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। ये आप देख सकते हैं। तो ये भी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या किए कि ये जनरलाइज टर्म में दिया हुआ है, मतलब 5x और 5-x फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मेथड्स वही है और सब चीज वही है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है।